کہ کبھی دیتے نہیں معقول قیمت جو پسینے کی، کبھی دیتے نہیں معقول قیمت جو پسینے کی، غریبوں کے لہو سے کوٹھیاں تیار کرتے ہیں۔ کبھی دیتے نہیں معقول قیمت جو پسینے کی، غریبوں کے لہو سے کوٹھیاں تیار کرتے ہیں۔ اور ہماری محنتیں اور محنتانہ دلا جاتے ہیں خیراتوں کی یاد۔ ابھی آپ مولوی صاحب کی غزل سماعت فرما رہے تھے کہ آج میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ تاریخ ہے اردو کی شب 13 رجب۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس صبح کو مولا کائنات علی بن طالب علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی تاریخ، کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے شاہ فرمایا انا مدد العلم والی بابا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور شاہ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہاں علی کا ذکر ہو رہا ہے تو عبادت میں شمار ہوگی محفل ہماری۔ چند اشعار جو آپ کو، ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، اسلامی جنگ کا واقعہ، خیبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر کو مولا کائنات نے اکھاڑا تھا، تو شاعر نے ایسی منظر کشی کی ہے، آپ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ ہم خیبر کے میدان میں وہاں موجود ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نکلتی ہے غلاف تن سے یوں محجبی الٹی، نکلتی ہے غلاف تن سے یوں محجبی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی۔ یعنی تلوار جو نکلتی ہے، آپ دیکھیں کہ نکلتی ہے غلاف تن سے یوں محجبی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی۔ الٹ دینے کو خیبر جب علی نے آنکھ کی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی۔ پوری کیفیت آپ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ اس دوران کیسی کیفیت رہی ہوگی۔ میں نے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ایسے معروف ادیب شاعر جو استاد شاعر بھی ہیں، جو صوفی شاعر بھی ہیں، اور جو حاجی بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، گوہر صاحب سے ان کا ایک عجیب رشتہ ہے کہ میں کہوں کہ کریم سٹی کالج میں اگر گوہر صاحب کو انٹروڈیوس کیا ہے تو احمد بدر صاحب نے، اور اس کے جو ریسرچ اور جتنی بھی ادبی خدمات دونوں مل کر انجام دیے ہیں، وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ سیدھا میری مراد پروفیسر احمد بدر صاحب سے ہے کہ آپ نے تشریف لائے اور اندھیرے اجالے اس کتاب کی جو شاعری کا مجموعہ ہے اس کی روشنی ڈالیں۔ جناب صدر اسلم علی صاحب، زکریا صاحب، ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، ڈاکٹر اسلم ملک صاحب، درزاد صاحب، گوہر عزیز صاحب اور تمام خواتین و حضرات، کتاب کا اجرا ہو چکا ہے اور کتاب پر تفصیلی گفتگو ہمارے شہر کے نامور ادیب سنا نگار ناقد اختر آزاد صاحب نے کر دی ہے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کو کہا، ورنہ کتاب میں میرا مضمون بھی شامل تھا، جو پڑھے گا وہ پڑھ لے گا۔ لیکن ایک بات کہنی ضروری ہے کہ شعر کہنا، شاعری کرنا یا ادب کے کسی بھی صنف میں تبادلہ کرنا یا فن کے کسی بھی شعبے میں کچھ کرنا ایک مشکل کام ہے۔
اور ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ شاعری کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، پھر اس کو چھپنے لائق ایک شکل صورت میں اس کو تیار کرنا، پھر اس کو چھپوانا، یہ سب آسان مراحل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے سب کے مجموعے شاعر نہیں ہو پاتے تمام شاعروں کے۔ اس میں ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی کتاب پر لوگوں سے لکھوانا، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ کئی لوگوں کے پاس لے کے جاتا ہے، آپ کچھ لکھ دیجیے، آپ کچھ لکھ دیجیے، کبھی کوئی لکھ دیتا ہے، کبھی نہیں بھی لکھتا ہے۔ اس شہر میں ایک کتاب ایسی بھی چھپی جس میں میں نے کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن اس میں جو اس کے شاعر نے یہ ذکر کیا ہے، میرا نام لے کے ذکر کیا ہے کہ 6 مہینے تک ان کے پاس پسندیدہ رکھا رہا اور انہوں نے اس پر نہیں لکھا۔ ہم نے کہا چلو میرا نام تو شامل ہو ہی گیا، لکھے چاہے نہ لکھے۔ اس میں ایک مضمون چونکہ میرا بھی ہے، تو یہ تو مشکل ہے، یہ لکھوانا تو مشکل ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کسی شاعر پر، اپنے شہر کے شاعر پر، آس پاس کے جانے پہچانے شاعر پر لکھنا بھی مشکل کام ہے۔ لکھوانا تو مشکل کام ہے، لکھنا بھی مشکل کام ہے۔ تقریباً 20 لوگوں کے مجموعوں پر میں نے لکھا ہوگا، اس شہر کے ایک دور کے، ایک ہی زبان کے، ایک ہی آس پاس کے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور ایک ہی بات سب کے بارے میں نہیں لکھی جا سکتی، ایک ہی بات سب میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ سچی بات بھی یہ ہے کہ ایک ہی بات سب میں ہوتی بھی نہیں ہے، تو ایک ہی بات لکھی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اس چیز کو نکال پانا، اس کے لیے تھوڑا وقت بھی لگتا ہے اور تھوڑی محنت بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پورے طور پر وہ کام نہیں بھی ہو پاتا ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ میں نے کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے تو وہ جب آپ پڑھیں گے تو فیصلہ کریں گے، لیکن میں صرف ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ جب لکھتا ہے آدمی تو کتنی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں لکھتا ہے اور کیا لکھتا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا 2 منٹ کے اجرا کے بعد اپنا ہی مضمون کھل گیا سامنے، تو میں نے دیکھا کہ اس کا پہلا جملہ ہے کہ جب سے اس عالم آب و گل میں انسانی تہذیب قائم ہے، تبھی سے شاعری کا وجود ہے۔ یہ میرا ہی لکھا ہوا جملہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کو لکھنے کے پیچھے جو باتیں ہیں صرف وہ کہہ دیتا ہوں، باقی تو آپ پڑھ لیجیے۔ جب سے اس میں دعویٰ کیا گیا کہ جب سے دنیا قائم ہے تب سے شاعری، اگر ہندو میتھولوجی کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ والمیکی جو ہے وہ آدی کوی، سب سے پرانا، فورموسٹ، اور رامائن جو ہے وہ آدی گرنتھ، پہلا، اس سے پہلے شاعری نہیں ہوئی تھی۔ پہلی شاعری آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہسٹری نہیں ہے، لیکن یہ میتھولوجی ہے، یہ ماننا ہے، یہ مانا جاتا ہے، یہ مانیتا ہے کہ سب سے پہلے جو شاعری وجود میں آئی وہ سنسکرت میں آئی، اور سنسکرت میں والمیکی نے لکھا۔ تو لکھا کیسے؟ وہ لکھا اس طرح سے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس کہانی کو وہ ایک شیپ دیں، لکھیں۔ ایک ہنسوں کا جوڑا تھا، سارس کا جوڑا، کرونچ پکشی آیا ہے، کرونچ بھی سارسی کی ایک جاتی ہے، تو اس کے کسی شکاری نے تیر چلایا اور جو نر تھا وہ اس کے تیر سے گر کے نیچے مر گیا، اور مادہ جو سارس یا کرونچ تھی وہ رونے لگی، بہت روئی، بہت اس کی لاش پر۔ اس کو دیکھنے کے بعد والمیکی کے منہ سے کچھ چیزیں ملی،
कुछ अल्फाज निकले, कुछ श्लोक जैसे, जिसको बाद में उन्होंने कहा कि ये तो कोई छंद जैसा लगता है। उसके पहले छंद था नहीं। उसके बाद कई जो उस जमाने के लोग, उन्होंने विद्वान लोग, उन्होंने देखा और कहा कि नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है, ये वो नहीं है। वो जबान तो वही है जो बोलते हैं, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है जो हमारी बोलचाल से अलग है। तो मालूम हुआ कि ये उसका नाम दिया गया कि ये शायरी है। और उसके बाद उसी छंद में उन्होंने रामायण, एक मान्यता ये है इस्लामी मैथोलॉजी में, एक बात ये है कि हजरत आदम जब जन्नत से इस दुनिया में आए, तो जाहिर है कहानी नहीं सुनानी है, लेकिन जब उसके औलाद हाबिल और काबिल, इंग्लिश में कहते और का लफ्ज़ उसके लिए आता, हाबिल और काबिल के लिए। हाँ, काबिल ने हाबिल को मार दिया, बहुत मशहूर बात है। काबिल ने हाबिल को मार दिया, और जिससे हज़रत आदम को बहुत तकलीफ हुई, बहुत अफसोस हुआ, और उनके मुँह से जो अल्फाज निकले वो अशार की शक्ल। किसी ने लिखा है कि वो सुरियानी ज़बान के वल्ला, या जाहिर है कि ये भी तारीफ नहीं है, ये भी मैथोलॉजी है, ये भी एक मान्यता है। हो सकता है कोई आदमी बिगड़ जाए तो सुरियानी में कैसे हो सकता है, अल्लाह की ज़बान तो अरबी है, लेकिन अल्लाह को किसी एक ज़बान का पाबंद करना भी गलत है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायरी का तस्वुर इंसान ने जो किया है वो बिल्कुल शुरुआती दौर से किया है। यानी हाबिल के का कत्ल हुआ तो क्या हुआ, एक जज्बा तारीफ हुआ, एक अफसोस, एक गम, एक ऐसा जज्बा हुआ जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातें मुंह से निकली जो नॉर्मली नहीं निकलती, वो शायरी कहलाए। ये हुआ या नहीं हुआ, ये इससे मुझे इस पर कोई गरज नहीं, बल्कि ने ऐसा कुछ देखा और हुआ कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग मानते क्या हैं, जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्या माना कि जज्बात की जो पेशकश होती है वो शायरी की शक्ल में होती है, बेहतरीन पेशकश। जज्बात सबसे अच्छी शक्ल में जो सामने आते हैं वो शायरी होती है, चाहे वो गम के जज्बात हो, खुशी के जज्बात हो, गुस्से के हों, अफसोस के हों, हैरत के हों, जोश के हों, ये सारे जज्बे हैं, इमोशंस हैं। तो इमोशंस, फीलिंग्स या थॉट, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब शायरी में ही बेहतरीन शक्ल में सामने आए, इसलिए कि शायरी में अल्फाज का इंतखाब अलग होता है, शायरी नस्ल से बिल्कुल अलग होती है। शायरी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो होते वही हैं जो नस्ल में होते हैं, नस्ल में वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो शायरी में आते हैं या ख़ास कंपोजिशन में आते हैं, उनका इम्पैक्ट बदल जाता है, उनका असर बदल जाता है और वो बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। गालिब का एक बड़ा मशहूर आसान शेर का परसों भी हम किसी को ये सुना रहे थे, सबको मालूम है, सबको याद है ज़बानी कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की और रात भर नहीं आती। इसको नस्ल में कहें तो कोई बात ही नहीं है भाई, मौत का एक दिन तय है, वो एक दिन मौत आनी है, वो दिन तय है, तो हम परेशान काहे हो, नींद क्यों नहीं आ रही है, हम क्यों बेचैन हैं, आराम से रहना चाहिए, जब आएगी तो आएगी, आने का वक्त होता है, नस्ल में कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये शायरी में कंपोज हो जाता है, वैसे ही इसमें एक अजीब कैफियत पैदा होती है। मैं तो कहता हूँ कि मैं सिर्फ अलग अलग तरीके से इसको जब पढ़ता हूँ तो इसके मानी बदलता है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का, नींद का नहीं, नींद क्यों रात भर नहीं है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद का तो नहीं मुअय्यन। अच्छा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, एक दिन, सिर्फ कहाँ जोर दिया जा रहा है, सिर्फ उसको बदलते जाइए। मौत का एक दिन मुअय्यन, रोज रोज नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है। दूसरे
नींद क्यों रात भर नहीं आती? अच्छा, नींद क्यों रात भर नहीं आती? नींद क्यों रात भर नहीं आती? अच्छा, नींद क्यों रात भर नहीं आती? सिर्फ पढ़ते जाइए, पढ़ने का लहजा बदलते जाइए, ये बात नस्ल में नहीं हो सकती। ये शायरी में ही होती है कि शायरी अल्फाज को एक ख़ास तरतीब से सजाने का और उसमें एक ख़ास बात पैदा करने का नाम है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक चाहे वो जज्बात हो, चाहे वो एहसासात हो, चाहे वो फिक्र हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक ये इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तब तक शायरी नहीं बनती। कभी कभी गज़ल हो जाती है, अशार हो जाते हैं, शायरी नहीं होती। शायरी इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे बहुत से अशार गौहर अजीज़ के यहाँ मिले हैं जिनमें शायरी है, शायरी पाई जाती है। अब एक दूसरी बात यह है कि हम क्यों किसी शेर की तारीफ करते हैं, हमको क्यों अच्छा लगता है। अभी यहाँ से गज़लें पढ़ी गई, इधर से वाह वाह की आवाज़ आई, क्यों आई? किसी शेर पर आती है, किसी पर नहीं आती, तो क्यों आती है? वो मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब कोई शेर ऐसा सामने आता है जब आपको लगता है कि हाँ यही तो हम भी कहना चाहते हैं, हाँ ये बात ये तो मैंने भी फील किया है, ये तो मैंने भी महसूस किया है, ये मेरा भी तजुर्बा है। और उसके बाद जब वो चीज़ सामने आती है तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से सामने आया, शायद हम इतने अच्छे तरीके से नहीं कह पाते, इसलिए बात कहते हैं। वो आप ही की बात होगी, आपकी बात, आप ही का ख्याल, आप ही की सोच, आपका कोई जज्बा, आपकी कोई भूली बिसरी याद किसी अच्छे पैराए में सामने आती है, आप उसको अपने आप से जोड़ पाते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ तो है, ये है जिसकी तारीफ करनी चाहिए और आपके मुँह से एक वाह निकलती है उसके लिए। अब मैं दो चार शेर सुनाना चाहता हूँ। अब देखिए, शायर जो होता है वो शायरी नज़्म की भी होती है और गज़ल की भी होती है। नज़्मों की शायरी में बहुत सी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट कही जाती हैं। कोई वाक़या हुआ, उस पर एक नज़्म लिखी जिसका उस पर जिक्र आया, उस पर नाम भी आ सकता है, मकाम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो तो उस डायरेक्ट हो जाता है। गज़ल के साथ दिक्कत क्या है कि वो चीज़ों को अलामत की शक्ल में, इश्तिहारे की शक्ल में, एक पर्दे में बयान करने का नाम है गज़ल। गज़ल में हम खुलेआम गोली बम बारूद नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो फिर वो गज़ल का दर्जा जो है घट जाता है। गज़ल में खुल के सारी बातें नहीं होती, नाम लेके नहीं होती। गज़ल में बड़े इशारे किनारे में बातें कही जाती हैं और ये एक तरह से कोडिंग की जाती है उसकी, और सुनने वाला उसको डिकोड करता है। सुनने वाला उसको अपने तौर पर समझता है कि उसने कभी कभी कुछ और भी समझता है, तो जरूरी कि जो शायर ने कहा वही समझो, कुछ और समझ सकता है और उसको हक है इस बात को समझने का। मुझे जो अशार इसमें पसंद आए और अच्छे लगे, देखिए मैं एक शेर इनका पढ़ा हूँ कि यतीम का टल गया मौसम जो आने वाला था, यतीम का टल गया मौसम जो आने वाला था, हम अब के साल भी गहमो घुमा से गुजरे। अब ये कौन सा मौसम था जो आने वाला था, लग रहा था कि ये मौसम आएगा। मौसम कहें, दिन कहें, जो कह लीजिए, कौन सा ऐसा पल था, कौन अब कुछ भी हो, अब ये सुनने वाले पर है, ये पढ़ने वाले पर है, वो अपने तौर पर डिसाइड करे कि वो कौन सा मौसम था जो आ रहा था, लग रहा था कि आ रहा है, लेकिन आते आते नहीं आया। फिर कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं फिर वो कब मौसम आएगा, फिर कब मौसम बदलेगा। हम अब के साल भी बहमो घुमा से गुजरेंगे तो मतलब ये कि हम यकीन से अब नहीं कह सकते कि अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, अब क्या होगा, चले आगे देखें क्या होगा। और ये वो कैफियत है जिससे कोई ऐसा नहीं होगा जो इस तरीके से ना गुजरा हो, ना गुजरता हो, ना गुजर रहा हो। देखिए
न जाने आएगी कब तक चमन में शादाबी, न जाने आएगी कब तक चमन में शादाबी, लहू कुछ और सभी को पिला के चलना। अब ये चमन जो है ये दबिस्तान जमशेदपुर है या करीम सिटी कॉलेज है या जमशेदपुर है या झारखंड है या हिंदुस्तान है या दुनिया है, ये सोचने वाले पर है, सुनने वाले पर है, पढ़ने वाले पर है। उसके लिए वो चमन क्या है, वो किस चीज़ को चमन कह रहा है, और कब इस चमन में शादाबी आएगी, कब इस चमन में हरियाली आएगी, ये सुनने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इसको, इन इमोशंस को, इन फीलिंग्स को, इन बातों को अपने अंदर कैसे लेता है और अपने आप से कैसे जोड़ता है इसको। जब जोड़ लेता है तभी जाके वो इस शेर के लिए उसके मुझसे बात निकलती है, और ये शेर एक तरह से उसका अपना शेर हो जाता है, अपना लेता है शेर। इसलिए कि कहने वाले का हो सकता है मानी कुछ और हो, सुनने वाले का मानी कुछ और है, तो शेर सुनने वाले का है। देखिए, मैंने कहा कि गज़ल में बातें एक अलग पैराए में कही जाती हैं। नज़्म में महंगाई का जिक्र हो सकता है, ये भी हो सकता है कि त्योहार मनाना कितना मुश्किल हो गया है, लेकिन गज़ल में जब वो बात कही जाती है कि बाजार में खुशी की गिरां सख्त अब के साथ, बाजार में खुशी की गिरां, खुशी गिरां थी, महंगी थी, बाजार में खुशी की गिरां सख्त अब के साथ, और कागज का फूल बन के खिली ईद, क्या कागज का फूल बन के खिली ईद, क्या करें। ये महंगाई का रोना गज़ल में कैसे रोया जा सकता है, और जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक लोगों की हालत है, जो माशी हालत है, जो समाजी हालत है, जो सब कुछ जो बीत रही है, वो गज़ल में कैसे आता है, ये अगर देखना हो तो इस तरह के अशार जो अच्छा खासी तादाद में गवर्नर जिसके यहाँ ये ऐसे अशार मौजूद हैं, और जिनसे आप अपने आप को जोड़ देते हैं, जिसके साथ आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसके साथ आप कहते हैं कि हाँ यही तो हम कह रहे थे, यही तो हम चाहते थे। देखिए, ईमान बेचते हैं सजाकर दुकान में, ईमान बेचते हैं सजाकर दुकान में, हम ऐसे रहनुमाओं की तकलीफ क्या करें। ये इस तरह के अशार, ये क्या होता है कि ये एक अरसे तक ये बातें दिल दिमाग में गूंजती रहती हैं, तब कभी एक शक्ल पा करके, एक सही अल्फाज के साथ जुड़ करके वो सामने आती हैं, और फिर वो बातें दिल से निकलती हैं, चूँकि तो दिल तक पहुँचती हैं। देखिए, इसी तमहीद के बगैर एक शेर इनका पढ़ रहे हैं, ये कैसी अदालत, ये कैसी अदालत, ये इंसाफ कैसा, ये कैसी अदालत, ये इंसाफ कैसा, मेरा जुर्म साबित समाज से पहले, सुनवाई से पहले ये जुर्म साबित, कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कोई इसकी तशरीह करे तो शायद नाम लेके बहुत से नाम दिए जा सकते हैं इसमें कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये गज़ल की खूबी है कि ये शेर कहीं भी किसी भी दौर में, ये आज से 100 साल पहले के दौर के लिए भी ये शेर फिट हो सकता था, हो सकता है 100 साल के बाद का भी दौर अगर ऐसा ही रहा तो उसके लिए ये शेर मुनासिब रहेगा। और एक आध शेर और देखिए बस, कि छुप के जो तीर चलाता है, छुप के जो तीर चलाता है वो होगा अपना, छुप के जो तीर चलाता है वो होगा अपना, उससे कह दीजिए दुश्मन है तो खुलकर हो जाए। ये वो बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं, हम हमारे दिल में है, हमारे तजुर्बे में है, हम इसको महसूस करते हैं, शायद कह नहीं पा रहे थे, और कोई दूसरा कह देता है, सामने आ जाता है, दो मिसरे में एक बात सामने आती है, तो दिल चाहता है कि इसकी तारीफ करे, दिल चाहता है कि कहें कि हाँ यही तो है, यही बात तो कह रहे हैं, यही तो है शायद। मैं
एक शेर और देखिए, अच्छा मेरी पसंद का शेर है कि लगेगी आग तो शोले बुलंद भी होंगे, लगेगी आग तो शोले बुलंद भी होंगे, जलेंगे वो भी जो ऊंचे मकान वाले। लगेगी आग तो शोले बुलंद भी होंगे, जलेंगे वो भी जो ऊंचे मकान वाले हैं। एक बहुत ऊंचे मकान वाले तो आजकल एक हफ्ते से बहुत परेशान है। एक नहीं उस पर ये अभी शेर से वो याद आया तो क्या करें, इन्होंने तो पहले कहा, इन्होंने तो बहुत पहले कहा। शेर शायरी और खास करके गज़ल की शायरी और इस तरह की शायरी जो है ये अपने अहद का, अपने दौर का डॉक्यूमेंटेशन है। ये शेर जो आज कहा जा रहा है, जैसे हर शेर में जो अच्छे अशार आज कहे जा रहे हैं, वैसे आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले नहीं कहे जा रहे, और 100 साल बाद भी ऐसे अशार नहीं कहे जाते। हर दौर की डिमांड अलग है, हर दौर का परसेप्शन अलग है, जज्बात नहीं बदले, खुशी, गम, अफसोस, गुस्सा, हैरत, जोश सब वही है तो, लेकिन उसको देखने का नजरिया बदला है। पहले जिस तरह से चीज़ों को हम देखते थे आज वो नहीं देखते हैं। पहले हमारे बचपन में भी असलम साहब के साथ और उनके बचपन में और दूसरे हालात रहे होंगे। मेरे बचपन में कम से कम एक मर्डर अगर हो जाता था तो कम से कम 1 महीने तक उसका चर्चा हो जाता था कि मर्डर हो गया। और आज 2-4 मर्डर रोज होता है, आदमी सुनता है और मुस्कुराता है और एक दूसरी बात करने लगता है। दौर बदलता है, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है तो परसेप्शन बदलता है चीज़ों का। तो शायद वो शायरी में आएगा अगर पढ़ने वाला ज़हीन है, पढ़ने वाला बारीकी से पढ़ना जानता है तो शेरों का तजिया करेगा तो समझ जाएगा कि ये किस दौर की, मीर के दौर की शायरी देखे तो या गालिब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गज़ल का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर शेर को अंदर घुसने की सलाहियत पैदा हो जाए, शेर गज़ल के शेर की तरह समझने आ जाए तो शायद बहुत सी चीज़ें अंदर से निकलेगी शायरी की। जैसे आज हम देख रहे हैं, आज चूँकि आज के हालात को देख रहे हैं, उन अशार को देख रहे हैं तो हमको लगता है कि बिल्कुल आज की बात है, लेकिन 100 साल के बाद अगर कोई इन अशार को पढ़ेगा और ज़हीन कोई शख्स पढ़ेगा तो यकीनन वो समझ जाएगा कि ये दौर कैसा था। इसलिए कि ये दौर जितने हसास लोग हैं, हसास शायर हैं, उनकी शायरी में अपना दौर ट्रांसफर हो जाता है, उसमें महफूज हो जाता है, वो प्रिजर्व कर देते हैं आने वाले वक्त के लिए अपनी शायरी में अपने दौर को। इसमें नज़्म हो या गज़ल हो उसकी तखसीस नहीं है, दोनों में होता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था, बाकी तो जो मैंने लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। दो शेर शशि भाई सामने बैठे हैं, 2 शेर इनको सुनाते हैं कि कभी देते नहीं माकूल कीमत जो पसीने की, कभी देते नहीं माकूल कीमत जो पसीने की, गरीबों के लहू से कोठियाँ तैयार करते हैं। कभी देते नहीं माकूल कीमत जो पसीने की, गरीबों के लहू से कोठियाँ तैयार करते हैं। और हमारी मेहनतें और मेहनताना दिला जाते हैं खैरातों की याद। ये पहला मजमुआ है और मुझे यकीन है कि आखिरी नहीं होगा। अगला मजमुआ यकीनन इससे बेहतर होगा, इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया।